Let's start the session. The first formula we are going to study for the day will be midpoint formula. Formula is very simple. The formula is x1 plus x2 upon 2, comma, y1 plus y2 upon 2. This formula we are going to use when in the question they will mention midpoint. Okay, let's start. Yeah. If point A and point B are given to you, okay, तो ये point A और point B है. Find the coordinates of the points which divide the segment AB into 5 congruent parts. तो ये पूरा segment 5 congruent parts में divide है. First one, second one, third one, fourth and fifth. Okay, तो ये 5 congruent parts में divide है. Or let this PQRS be the 4 points which divide the segment AB in 5 equal parts. Equal parts है, that's why हमें लिखना पड़ेगा that AP is equal to PQ, PQ is equal to QR, QR is equal to RS, and RS is equal to SP. A का coordinate है, B के coordinates we are having, but P, Q, RS हमें find करना है. तो चलो हम वन बाय वन हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे विल फाइंड आउट. पहले हम जाते हैं P की तरफ. आप मुझे बोलिए ये P कौन से पॉइंट का हेल्प लेगा? इट विल टेक हेल्प ऑफ विच पॉइंट? एनीवन? Perfect. This P is actually going to take the help of point A. So I'm going to write down AP upon. चलो तो P ने A का हेल्प ले लिया. अभी ये P कौन से पॉइंट का हेल्प लेगा? सेकंड पॉइंट. टेल मी. Yes, PB, because B is having its own coordinates. ये हो जाने के बाद let AP be as it is upon this whole PB का segment is divided into congruent parts. The first is PQ, second is QR, third is RS, and fourth is SB. Great. Okay, तो ये AP है उसको वैसे के वैसे ही रख देंगे. बट क्या instead of PQ I can write down AP? Yes, because they are congruent to each other. Instead of QR can I write down AP? Yes. Instead of RS can I write down AP? Definitely. Instead of SB can I write down AP? Sure. अभी ये सब AP जो डिनोमिनेटर में है हम उनको ऐड करेंगे and which will become AP upon 4AP. AP will get cancelled and you will get AP upon PB is equal to 1 upon 4. Students tell me this 1 upon 4 is what? क्या है ये 1 upon 4? It's nothing but the ratio. मतलब this point P is dividing the segment AB in the ratio 1:4. And when ratio come, tell me students, कौन सा formula use करेंगे? Yes, we are going to use section formula. तो चलो use करते हैं. देखते हैं. X coordinate of point P is equal to x1. Okay, ratio will be m and n. तो पहले m और n ratios लिखते हैं. चलो तो ये m और n मैंने लिख दिया. फॉर्मूला क्या है? mx2 mx1 अपॉन n प्लस n. तो आप मुझे बताइए x2 कौन होगा? Perfect. Who is going to be x1? Yes. चलो सॉल्व करते हैं. 420s are 60. Okay.
So the y coordinates of point P, ratios will be same, only y के values will get substitute. चलो y2 बताइए, perfect. y1 बताइए, yes, amazing. So we have got the answer 12. तो फाइनली हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दैट इज 16, 12. ओके, तो P का कोऑर्डिनेट मिला है हमें. आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. P का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, आप मुझे सेकंड पॉइंट बताइए जिसका आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट. ओके, मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, बट इफ यू सी वन मोर पॉइंट दैट इज R, ध्यान से ये R PB का क्या है इन द फिगर. Wow, it's a midpoint. और midpoint is the simple formula in the coordinate geometry. तो पहले midpoint use करते हैं ना. R find करना, it's very easy. Let's find it out. As R is the midpoint of PD, so by using midpoint formula, x is equal to, that is x coordinate of point R is equal to x1 plus x2 upon 2, and it will give you 8. Similarly, midpoint का y coordinate formula भी है, that is y1 plus y2 upon 2. Yes, तो हमें r का कोऑर्डिनेट मिल गया. अभी कौन सा कोऑर्डिनेट यू विल फाइंड आउट? कम ऑन, टेल मी. वाओ, कोई भी कर सकते हो, बट आई विल फाइंड आउट q, because this q is a midpoint of segment PR. Again, midpoint formula. We are using midpoint formula for second time. Okay, that is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Perfect. तो हमें Q का midpoint मिल गया. चलो, S भी कौन से theory से या कौन से formula से you will find it out? Come on, tell me. Wow, the students understood कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे. How the formula I'm using, which formula I'm giving the priority. Okay, तो ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा. It's just a revision. We are using midpoint formula for third time. Yes, हो गया. तो हमें सब कोऑर्डिनेट्स मिल गए. P मिला, Q मिला, R मिला, S मिला. We've got all the coordinates. And in the final statement, I will write it down that I have this got P, Q, R, S के coordinates which divide the segment AB in 5 equal parts. और ये पूरा सम आएगा for 4 marks. क्या बहुत इजी है? Perfect. जब ट्राई सेक्शंस या मैं कहूंगा 5 sections वाले सम आएंगे, 4 sections वाले सम आएंगे, there are only 2 possibilities. Either you have to use section formula or you have to use midpoint formula. ओके, तो दो फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला या दोनों फॉर्मूलाज यूज करने पड़ सकते हैं आपको. लेट्स मूव. वन मोर सम, और ये बहुत अच्छा सम है और वन ऑफ द आई वुड से डिफिकल्ट सम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लेट्स सी. We are having a segment AB. A line segment AB divides into 5 congruent parts at P, Q, R and S. Okay, P, Q, R and S. तो ये भी पूरा segment has divided into 5 congruent parts. But इस सब में twist ऐसा है कि they have given you Q के coordinates, they have given you S के coordinates. Rest जो points के coordinates है, you have to find it out. Okay, तो चलो, आप कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे? Which coordinate you will find out first? Yes, first we will find out R and it. तो चलो R फाइंड करते हैं. R is a midpoint of QS. So one more time midpoint formula. That is x1 plus x2 upon 2, and it will give you 8.
then y1 plus y2 upon 2 and it will give you 16. तो हमें r का मिड पॉइंट मिल गया बच्चों। r तो मिल गया, q और s पहले से ही थे, रिमेनिंग 3 पॉइंट्स a p एंड b। अभी फिगर को अच्छी तरह से देखो एंड आई विल डू सम मॉडिफिकेशन इन द फिगर। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा a के कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स भी x2 y2, अभी मैं कुछ चीजें इनविजिबल करूंगा। तो नाउ लुकिंग एट द सेगमेंट AS, फिर से देखता हूं, ये हमारा रियल फिगर ऐसे था, आई हैव मॉडिफाइड दिस, बहुत सारी चीजें मैंने इनविजिबल कर दी। नाउ टेल मी इन दिस सेगमेंट AS Q क्या है? वाओ, इट्स अ मिड पॉइंट। तो आउट ऑफ 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है और एक का फाइंड करना है, दैट इज A। कैन वी फाइंड इट आउट? कैन वी? यस। तो चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? टेल मी। Oh, it's a midpoint. Okay, so AQ is equal to QS. That's why Q is the midpoint of AS. So by midpoint formula, tell me who is going to be the X. Midpoint formula क्या है? X is equal to X1 plus X2 upon 2. Y is equal to Y1 plus Y2 upon 2. Who is going to be X over here? X की value क्या है? Yes, 12. X1 की value क्या है? X1 only. Tell me X2 की value क्या है? Perfect, 4 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2s are 24. Substitute the 4 on the left hand side and x1 का वैल्यू मिल गया। midpoint formula for the x we have used. Now we will use midpoint formula for the y. Tell me the y के coordinate, y का coordinate क्या है? Come on, tell me. What is y का coordinate? 14. Okay, y1 कौन है? y1. y2 कौन है? 18 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, परफेक्ट। सो वी हैव गॉट y1 का वैल्यू दैट इज 10। तो फाइनली हमें a का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी और p और b बचा है। p कैसे फाइंड करोगे? कम ऑन टेल मी हाउ यू विल फाइंड आउट p के कोऑर्डिनेट, व्हिच फॉर्मूला यू विल यूज? Perfect. So we are going to use midpoint formula one more time. As AP is equal to QP, this P is the midpoint of AQ. Okay, so by midpoint formula, x1 plus x2 upon 2, simplify, then y1 plus y2 upon 2, simplify, तो आपको P का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अभी हमें लास्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दैट इज B। तो ध्यान से देखते हैं B को। ओ, लुक एट दिस सेगमेंट RB। ये RB का S क्या है? ओ, मिड पॉइंट। मतलब दिस RS is actually equal to SB. It's a midpoint. तो one more time midpoint. Come on. तो मुझे बताइए, बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला x का कोऑर्डिनेट क्या है? परफेक्ट, अमेजिंग। x1 क्या है? x2 क्या है? अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमें फाइनली x4 का वैल्यू मिल गया, दैट इज 0। सेम थियरी वी विल अप्लाई। y का वैल्यू क्या है? 18, y1 क्या है? 16, y2 क्या है? y4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड you will get y4 का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स फाइनली
we have got coordinates of all points. तो हम लिखेंगे that we have received the coordinates of point A, P, R, B, which were mentioned in the questions, and this sum will come for 3 to 4 marks. Okay, got it everyone? Shubham Bane, what are you doing? Cameras off karo. Rahul, okay, let's move now. Now we are going to talk about the centroid formula. Okay, centroid formula is used to find out the centroid of the triangle. But ये centroid होता क्या है? Let's understand. Let's have a triangle. इस triangle के अंदर I'm going to draw medians. आपको triangle के हर vertex के coordinates दिए जाएंगे. उस कोऑर्डिनेट का यूज करके आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय सेंट्रॉइड. मीडियन, दिस इज मीडियन 1 and medians divide this side into two equal parts. So this is median 2, this is median 3. ये तीनों मीडियंस जहां पे कंकरेंस या जहां पे मीट हो रहे हैं, that point is called centroid. That point is always denoted by letter G. और इस G का ही हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, that is x, y. But what is the formula to find out the centroid? Okay, coordinates. The formula is x is equal to x1, x2, x3 upon 3. अगर y फाइंड करना है ऑफ सेंट्रॉइड, that is y1, y2, y3 upon 3. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? Yes. All of you? Good. Let's have an example. Suppose in the question they have given you the vertex के coordinates. Okay. A का दिया है, B का दिया है, C के coordinates दिए हैं. तो who is going to be x1? 3 होगा x1, B का 1 होगा x2, C का x3. आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. That's it, you will get the value. Same theory will be applicable for the y coordinate, that is y1, y2, y3. कि ये coordinates है 4, 5, 6 respectively. आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं and you will get the values, and these are the centroid के coordinates. इतना simple है. तो हमारा पहला सम, the question is find the centroid of the triangle whose vertex are this coordinates. Okay, तो पहले हम क्या लिखेंगे? Let A, B, C be the vertices of the triangle ABC. Let -7, 6 be the coordinate of point A, which is x1, y1. Let 2, -2 be the coordinates of P, which is x2, y2. And 8, 5 be the coordinates of point C, which is acting like x3, y3. और हमें क्या फाइंड करना है? सेंट्रॉइड. तो लेट दैट सेंट्रॉइड बी लेटर G, उसका पॉइंट भी लेटर G और उसके कोऑर्डिनेट्स भी x, y. We know the centroid formula, and the formula is x1, x2, x3 upon 3, that is -7 plus 2 plus 8 upon 3. Simplify कीजिए. This is your answer. Same y1, y2, y3 upon 3. आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं and this will be your answer. And this sum will come for 2 marks. तो अगर ये sum आ जाए, please don't miss it. Got it everyone? Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं.
over here. Find the coordinate of a centroid of the triangle. Okay. So centroid का formula we know. That is x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. अगर मेरे पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 के अगर मेरे पास वैल्यूज है तो मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा. ओके, तो लेट्स हैव अ ट्रायंगल. सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. D, E and F, point D, E and F are the midpoints of the sides. Okay, तो ये जो D है it's a midpoint of BC. This E is a midpoint of AC and this F is a midpoint of AB. Midpoints है. Midpoint से सेंट्रॉइड कैसे फाइंड कर सकते हो? हाँ, midpoints है मतलब there is a median. Okay, ठीक है. And this is G is a centroid. But the problem is सेंट्रॉइड फॉर्मूला में यूज करने के लिए यूजुअली हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं. मतलब ये ए का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, बी का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, सी का कोऑर्डिनेट दिया जाता है. बट दिस टाइम समथिंग इज टोटली वाइस वर्सा. ना ए का दिया है, अगर ए का नहीं दिया है चलो वी विल अज्यूम लेट दैट बी x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स भी x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स भी x3 y3. दैट्स अमेजिंग. ओके, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है. ओके, अभी मिड पॉइंट वर्ड आया है ना क्वेश्चन में, तो चलो देखते हैं उसका कुछ यूज होता है क्या. Oh, this F is a midpoint of which segment, students tell me? This F is a midpoint of which segment? Yes. तो अगर सेगमेंट AB में midpoint आया, which formula first we will use? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेफिनेटली midpoint फॉर्मूला. तो क्या सर midpoint फॉर्मूला से भी सेंट्रॉइड मिलता है? चलो देखते हैं. तो midpoint फॉर्मूला यूज करते हैं. देखो, F is a midpoint of AB. तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं. मुझे बोलो midpoint फॉर्मूला क्या है? X is equal to x1 plus x2 upon 2. Who is going to be x over here? X का वैल्यू बताओ. 2 is equal to x1 का वैल्यू क्या है? सर x1 ही है. x2 का वैल्यू क्या है? सर x2 है अपॉन 2. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 का एक वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. उसको आगे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, वहां तक ही रखना है. चलो अभी y वाला कोऑर्डिनेट, y वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं. हु इज गोइंग टू बी y? कम ऑन टेल मी. Who is going to be y? Y का वैल्यू बताइए. Yes, -2. एंड y1 कौन होगा? y1 ही होगा. y2 कौन होगा? y2 होगा अपॉन 2. वैल्यूज ही नहीं है ना, तो हमने उसको एज्यूम किया था. That 2 will get multiplied with -2 and it will become -4. This is equation number 2. Okay, तो पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया. क्या यहां पे और एक मिड पॉइंट है? Yes, this D is a midpoint of BC. मतलब हम मिड पॉइंट सेकेंड टाइम भी यूज करेंगे. चलो, who is going to be x over here? Who is going to be x over here in for the segment BC? Yes, -7. But who is going to be x1 over here? फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 upon 2 ना. x is equal to x1 plus x2 upon 2. बट अभी x1 कौन होगा? परफेक्ट, x2 होगा. तो x2 कौन होगा? यस, x3 होगा. फॉर्मूला इज सेम.
बट उस फॉर्मूला में जो हम x के वैल्यूज है वो चेंज हो गए। फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओनली वैल्यूज आर चेंज। This 2 will get multiplied with minus 7 and it will give you 14. This is equation number 3. चलो y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। y का वैल्यू बताइए, लुकिंग एट द पॉइंट D, परफेक्ट। Who is going to be y1? Who is going to be y2 upon 2? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए and it will give you this value. इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां पे और एक मिड पॉइंट है? Yes. So we are going to use midpoint theorem for third time, definitely. चलो तो मुझे बोलो x का वैल्यू बताइए, कम ऑन। x का वैल्यू, परफेक्ट। x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू क्या होगा? x1। x3 का वैल्यू क्या होगा? x2 का वैल्यू क्या होगा? x3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो y विल बी 5। y1 का वैल्यू क्या होगा? y2 का वैल्यू क्या होगा? यस, परफेक्ट, अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो फाइनली हमें कितने इक्वेशंस मिले? वी हैव गॉट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। सर ये सब इक्वेशन का क्या करना है? ध्यान से देखो इक्वेशन। जो इक्वेशंस में x वेरिएबल है उस इक्वेशन नंबर को अब बताओ, कौन से इक्वेशन में x वेरिएबल है? कम ऑन टेल मी। सिर्फ x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यू विल गेट टू नो इक्वेशन 5, 1 एंड 3 आर हैविंग x वेरिएबल। तो जिसके पास x वेरिएबल्स हैं हम उनको पहले ऐड करेंगे। उनका पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड वी विल ऐड एंड देन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 4 minus 14 plus 16 is equal to x1 x2 plus x2 x3, अभी हम राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं, एंड x1 x3। ये सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू विल गेट 6। x1 plus x1 will give you 2x1, x2 plus x2 will give you 2x2, x3 plus x3 will give you 2x3. This 2 will be common, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, दैट इज x1 x2 x3 का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज 3। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? ओके अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कौन से इक्वेशन में y वेरिएबल्स है। विच इक्वेशंस आर हैविंग y वेरिएबल्स? y लेटर्स के वेरिएबल्स, यस 2 4 6। हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -4 plus 12 plus 10 is equal to y1 y2 y2 y3 y1 y3. Just simplify this equation and you will get answer as 18. y1 plus y1 will give you 2y1, y2 plus y2 will give you 2y2, y3 plus y3 will give you 2y3. ये 2 को कॉमन लीजिए, divide this 2 with 18, that is y1 y2 y3 is equal to 9. तो स्टूडेंट अभी हमें सेंट्रॉइड मिल सकता है। यस, यू थिंक वी विल गेट द सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे? सर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल है। x1 x2 x3 का वैल्यू क्या है? 3। y1 y2 y3 का वैल्यू क्या है? 9। 3 1s are 3 1s are 3 1s are 3 3s are, मिल गया।
and this sum will come for 4 marks. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? Any problem regarding this? एक ने मुझे सवाल पूछा था कि सर हम ऐड क्यों कर रहे हैं? अगर हमने ऐड किया ही नहीं तो हमें x1, x2, x3 का एडिशन मिल ही नहीं सकता है. वी आर एडिंग बिकॉज सेंट्रॉइड फॉर्मूला में एड प्लस साइन है. दैट इज द ओनली रीजन वी आर एडिंग. यस दिवांशु गंगाधारी, किससे बात कर रहे हो बेटा? देखिए खाना खाते खाते लेक्चर के लिए बैठे. लेट्स मूव. ओ सॉरी, आई एम गोइंग टू टर्न ऑन वन मोर स्क्रीन. शेयरिंग थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया है. वेट फॉर अ मोमेंट. That's up to you that how you're going to solve this sum. Both the methods are perfect. आप किसके साथ comfortable हो, that is important. Okay, let's start. तो स्टूडेंट्स हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन लेक्चर्स खत्म हो गया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर फेवरेट चैप्टर सर्कल. सर्कल का पहला थ्योरम वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू रिवाइज. इसको बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. तो ये हमारा सर्कल है. इस सर्कल में आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टैंजेंट एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन मोर रेडियस. अब ये जो रेडियस एंड द टैंजेंट का एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज जब भी ये दोनों मीट होते हैं देयर इज ऑलवेज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, तो ये सिंपल सा थ्योरम है. Let's check out the first sum. Tangent theorem सबको समझ में आ गया? Anyone is having the doubt in the tangent theorem? Yeah. Thank you. Line L touches the circle with center O at the point P. तो ठीक है, ये हमारा फिगर है. Over here, line L touches the circle at center O at point P. मतलब this L is a tangent. Q is the midpoint of radius OP. ये जो Q है, it is the midpoint of a radius OP. That's why it divides the radius into two equal parts. After that, RS is a chord which is parallel to the tangent. Okay, so RS is parallel to the L. अगर RS का length is 12, the whole chord का length is 12,
देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, विल फाइंड इट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एक कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। द वेरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वी विल डू, हम क्या करते हैं और हमेशा ये चीज होती है, वी विल ड्रॉ वन मोर रेडियस दैट इज OS। ओके, अगर मुझे इस रेडियस का लेंथ फाइंड हो जाए तो मेरा सम तो हो जाएगा, बट कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, टैंजेंट और रेडियस OP जहां पे मीट होते हैं, कम ऑन 10 में स्टूडेंट्स, वहां पे कितना डिग्री बनेगा? टैंजेंट और रेडियस जहां पे मीट होते हैं वहां पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ओके, तो मैं लिखता हूं दैट OPR विल बिकम 90 डिग्री एंड द रीजन इज टैंजेंट थ्योरम। बट ये टैंजेंट ऑलरेडी कॉर्ड RS के साथ पैरेलल है। तो अगर कॉर्ड RS के साथ पैरेलल है, OPR अगर 90 डिग्री है, टेल मी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल OQS? यस, परफेक्ट। तो OQS will also become 90 degree and the reason is corresponding angle theorem. ओके, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है OP, देयर आर द चांसेस ऑफ द पेयर्स, और पहला पैर हमें जो मिला है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। जैसे ही यहां पे पैर मिला, कुछ याद आया सर्कल चैप्टर 9 स्टैंडर्ड का? ऑल ऑफ यू सर्कल चैप्टर याद आया 9 स्टैंडर्ड का? डिस्टेंस perpendicular to the chord will divide the chord into two equal parts। चलो मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस कौन है? Who is distance? अच्छा, RS डिस्टेंस है, वेरी गुड वेरी गुड, यू विल गेट द नोबेल अवार्ड फॉर इट। OQ दिख रहा है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से आता है, एमिट होता है, तो दैट OQ इज द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कॉर्ड RS के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब दिस RS विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। सो कैन आई से दैट दिस QS is half of RS? Can I say that this QS is half of RS? Because कोई भी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरता है, and when it is perpendicular to the chord, it will divide the chord into two equal parts. Got it, everyone? Yes, all of you? Perfect. Okay, RS का कितना लेंथ है? And RS का लेंथ is 12, तो QS कितना हो जाएगा? 6। ओके, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस वाला ट्रायंगल है, तो मुझे इस पाइथागोरस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में QS तो 6 मिल गया। अगर मुझे और एक साइड का लेंथ मिलता है तो मैं रेडियस तो फाइंड कर सकता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो रही है, पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज वन मोर मेथड। हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है जिसका हमें लेंथ पता नहीं है, रेडियस OS, let that radius be R, let that radius be R। ओके, और ये रेडियस OS किसके साथ इक्वल हो जाएगा? क्या इस सर्कल में और एक रेडियस है? यस, तो ये OS किसके साथ इक्वल हो जाएगा?
ओपी के साथ। परफेक्ट। ओके, तो ओपी का भी हम लेंथ लेंगे आर। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ओएस का हमें एक वैल्यू मिला है, दैट इज आर। अगर मुझे ओक्यू का भी एक वैल्यू मिल जाए तो मैं पाइथागोरस के लिए कोशिश कर सकता हूं। तो ये OQ, टेल मी दिस OQ is half of what? This OQ is half of what? It is half of radius. That is half of OP. ये OP का हमने क्या वैल्यू लिया है, कौन सा अल्फाबेट लिया है? परफेक्ट, परफेक्ट, दैट इज 1/2 R। मतलब OQ ऑटोमेटिकली बाय अप्लाइंग दिस लॉ क्या हो जाएगा? R/2। यहां तक क्लियर ऑल ऑफ यू? Any problem over here? Yes? Yeah, good. तो अभी आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? What you will do in the next step? Perfect. We are going to apply Pythagoras. Yes? Is it a right angle triangle? Indeed. So we are going to apply Pythagoras, that is hypotenuse का square is equal to side 1 का square plus side 2 का square. हाइपोटेनियस कितना है? आर स्क्वायर। ओके, OQ कितना है? R/2 द होल स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R square will be as it is. Open the bracket of R/2. It will be R square upon 4 plus 6. That is 6 का square is 36. Oh my God! Denominator में 4 आ गया। We don't want 4. तो what you will do? 4 नहीं चाहिए मुझे। I don't want, complications create हो जाएंगे। तो 4 रिमूव करने के लिए what you will do? Yeah, you will multiply throughout by 4, that is 4R square is equal to R square के बाद में 4 आ गया तो 4 और नीचे डिनोमिनेटर वाला 4 कट हो जाएगा and it will become R square, and 4 into 36 is 144. Great. Now what we will do, ये जो R square है that will move to the left hand side, same variable वाले एक साथ आ जाएंगे। 4R square में से if I subtract 1R square will give you 3R square. That 3 will get divided with 144 and that will be 48. 48 को हम break करेंगे in 16 into 3. 16 बाहर आ जाएगा and it will give you 4√3 units. Now this is your radius. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? And this sum will come for 3 marks. छोड़ना नहीं है ये सब. Okay? Got it? कोई problem over here? Yeah. Yes, Rajvi, you are having the problem. Why you are typing Y? Okay, okay, okay. Let's move now. Very interesting sum. इस सम में थोड़ा सा स्लो जाएंगे। देखते हैं। Segment AB is the diameter. Segment AB is the diameter of a circle center C. तो डायमीटर है मतलब यहां पे 2 रेडियस होने वाले हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी एक हिंट दे रहा हूं कि वी आर गोइंग टू यूज दिस रेडियस। PQ is a tangent which touches the circle at point T. ये जो PQ है ये tangent है। This AP is perpendicular to PQ and BQ is also perpendicular to PQ. आपको क्या प्रूव करना है? CP congruent to CQ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप बताइए क्या यहां पे CP लाइन या सेगमेंट दिख रहा है? नो, व्हाट यू विल डू देन? नहीं दिख रहा है तो यस, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट इट। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये रहा CP, मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया।
CQ आपको दिख रहा है क्या? यस, CQ आपको दिख रहा है? कैन यू सी CQ सेगमेंट? नो, तो वो भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा, मतलब ये CP को मुझे CQ के साथ कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है मुझे। ओके, अगर मैंने, देखो ये दोनों साइड्स, दो ट्रायंगल्स के साइड्स कब होंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? कम ऑन टेल मी व्हाट यू विल कंस्ट्रक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेडियस को टैंजेंट के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको दो दो ट्रायंगल्स दिखेंगे। तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आपका काम हो गया। और इस पे एक गोल्डन स्टेटमेंट या गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि कोई भी रेडियस टैंजेंट के साथ मीट होता है, वहां पे 90 डिग्री बनता है। ओके, तो चलो लेट्स हैव अ पेंसिल, देखते हैं क्या ये दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं डायरेक्टली। देखते हैं, दो ट्रायंगल के पास कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड। ओके, दो ट्रायंगल के पास 90 90 भी है, दो टर्म्स तो है, बट क्या थर्ड टर्म है? ये दो ट्रायंगल्स के पास थर्ड टर्म है? अच्छा, है कहां पे? यस जिया, वेयर इज द थर्ड टर्म? अच्छा, सीओ, सीओ किधर है? सीओ थर्ड टर्म है ही नहीं। वो सीपी और वो सीओ वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हमें, अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। वो प्रूव करने के लिए पहले ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और फॉर ट्रायंगल हमारे पास तीन टर्म्स तो होने चाहिए, तो वो टेस्ट से होंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉमन साइड है 90 डिग्री है, बट थर्ड टर्म, दूसरा कुछ भी चीज मुझे नहीं, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे दो ट्रायंगल में, साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे, तो करेंगे क्या? व्हाट वी विल डू, एंड दैट द होल कंस्ट्रक्शन विल क्लियर योर माइंड। चलो ध्यान से देखते हैं, मैं गौर से देखता हूं फिगर को। मैं देखता हूं यहां पे, ठीक है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे मुझे पता है, बट फिलहाल तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज एक टर्म मिसिंग है। मैं ध्यान से देखता हूं यहां पे एक कॉमन लाइन है PQ, और इस PQ के ऊपर AP is perpendicular, CT is perpendicular, and this line is also perpendicular. तीन perpendicular lines on the common line. So perpendicular lines, if they are on the common line, so can now we say that this all three perpendicular lines will be parallel to each other. दो परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन से मिले, थर्ड परपेंडिकुलर लाइन टैंजेंट सेगमेंट से मिली बीच वाली, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट AP इज पैरेलल टू CT एंड CT इज पैरेलल टू BQ? कैन आई, क्या मैं बोल सकता हूं? यस, रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो एक सिमिलैरिटी में एक रूल था, एंड दैट रूल वाज वेरी सिंपल। ओके, तीन पैरेलल लाइंस और दो ट्रांसवर्सल्स आते थे तो रेशियो निकलता था, बट वो इस साल रूल ओमिट किया गया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। सो देयर इज वन मोर मेथड। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं पता है? हम ना और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आई विल कनेक्ट दिस A विथ Q। जैसे मैंने A को Q के साथ कनेक्ट किया, कौन सा फिगर बना? टेल मी द फिगर, कौन सा फिगर बना? यस, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल में दो पैरेलल सेगमेंट्स है। ये ट्रायंगल अभी कौन सा रूल अप्लाई करने के लिए तैयारी में है? विच फॉर्मूला दिस ट्रायंगल विल यूज?
Come on, tell me. Yes, none other than BPT. As this triangle is having two parallel lines, that is CM is parallel to BQ, that's why इस triangle के ratios form हो गए, that is AM upon MQ is equal to AC upon CB. तो मैं लिखता हूं AC upon CB is equal to AM upon MQ. Equation number 1. बट इस कंस्ट्रक्शन से क्या सिर्फ एक ही ट्रायंगल बना और कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? टेल मी द नेम ऑफ द ट्रायंगल. ध्यान से देखना. एंड द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज APQ. यस. तो क्या ये भी बीपीटी बनने के मूड में है? यस. तो अप्लाई बीपीटी. As there are two parallel lines, that is MT is parallel to AP, that's why AM upon MQ is equal to PT upon TQ. तो चलो लिखते हैं AM upon MQ is equal to PT upon TQ. Basic proportionality theorem. अभी आप ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में? एनी कॉमन ratios? AM upon MQ, AM upon MQ. Yes. Transitivity. If these two ratios are congruent to each other, that's why this AC upon BC is equal to PT upon PQ. यहां तक सबको समझा? All of you? सबके माइंड में प्रॉपरली बैठा? चलो अभी थोड़ा ध्यान देना. ये AC और ये BC को ध्यान से देखो और मुझे बोलो. AC अपॉन BC है ना? AC और BC को फिगर में ध्यान से देखो और मुझे बोलो क्या है? What is that? कौन सा कंपोनेंट है ऑफ द सर्कल? Yes, they are the radii of the same circle. AC is equal to BC, radii of the same circle. तो मैं क्या करूंगा? PT अपॉन TQ वैसे ही लिखूंगा. यहां पे इमेजिन कीजिए मैंने ऊपर AC लिखा है, नीचे भी AC लिखा है इंस्टेड ऑफ BC, तो AC AC कट होके क्या बन जाएगा? 1. PT upon TQ is equal to 1. TQ will get shift to the right hand side. PT TQ के साथ इक्वल हो गया. अभी आप फिगर में ध्यान से देखिए, PT और TQ को ध्यान से देखिए, वो इक्वल हो गए हैं. Now just see this PT and TQ. क्या वो ट्रायंगल के पार्ट्स है? क्या वो ट्रायंगल के पार्ट्स है? क्या हमें इस ट्रायंगल का थर्ड टर्म मिल गया? दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री. ओके, समझ में आया? नाउ यू प्रूव दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. चलो देखते हैं, क्या ये दो ट्रायंगल में कॉमन साइड है? कोई कॉमन साइड है? यस. अभी मैं लिखता हूं PT इज कॉन्ग्रुएंट टू QT. अभी तो जस्ट हमने प्रूव किया. उसके बाद कुछ कॉमन. ओके, दे बोथ द एंगल्स, बोथ द ट्रायंगल्स आर हैविंग 90 डिग्री. CTQ, CTP, they are 90 degree and they are having the common sides. Tell me students, here दोनों triangle will be congruent by which test? Anyone? By SAS test. जैसे दो triangles हो गए, now we can see that CP is congruent to CQ. समझ में आया? All of you? Yeah. थोड़ा सा brush up करते हैं. वैसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे in the 3 minutes. I know this is one of the biggest sum. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए CP should be equal to CQ.
मैं ध्यान से देखता हूं, देन आई ऑब्जर्व कि अगर मैंने रेडियस को टैंजेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, यहां पे दो दो ट्राइंगल्स बनेंगे। रेडियस को टैंजेंट के साथ कनेक्ट करने के बाद 90 डिग्री भी मिल रहा है, तो दैट्स गुड, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूं फिगर में। कॉमन साइड है 90 डिग्री है, बट जो थर्ड टर्म मुझे चाहिए वो है नहीं, तो मैं थर्ड टर्म कोशिश करता हूं फाइंड करने के लिए। मैं बहुत अलग अलग तरीके यूज करता हूं। पहला तरीका मेरा ये है, मैं देखता हूं कि यहां पे एक PQ साइड है, वहां पे 3 परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर एक कॉमन साइड पे इफ यू आर गेटिंग 3 परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, पहले दो तो गिवन में है, एक तो अभी टैंजेंट्स थ्योरम से मिला, देन दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो जाने के बाद मैं और एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं क्या करूंगा, आई विल कनेक्ट दिस ए एंड क्यू। मैं जैसे ही ए और क्यू को कनेक्ट करता हूं, देन आई गेट द फिगर, दैट इज ट्रायंगल। आई एम यूजिंग बीपीटी थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, आई एम गेटिंग द रेशियोज। बट इस ए क्यू के कंस्ट्रक्शन की वजह से एक ट्रायंगल नहीं मिलता है, बल्कि वी गेट वन मोर ट्रायंगल, एंड दैट इज हियर APQ। वन मोर बीपीटी, और एक बीपीटी थ्योरम करेंगे, दैट इज AM अपॉन NQ इज इक्वल टू PT अपॉन TQ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ध्यान से देखता हूं, I get that AM upon NQ is in the equation 2 as well as in the equation 1. That's why AC upon BC is equal to PT upon TQ. ये AC और ये BC actually they are radii of the same circle. तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे PT अपॉन TQ इज इक्वल टू, इमेजिन करो कि यहां पे ऊपर AC है और नीचे में BC की जगह पे AC डालूंगा, बिकॉज दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। AC AC कट हो गया, क्या मिलेगा 1। दैट TQ विल मूव टू द आइदर साइड एंड PT विल बी इक्वल टू TQ। मैं PT और TQ को फिगर में ध्यान से देखता हूं, देन आई कम टू नो, oh, this PT and this TQ are the sides of this triangle. थर्ड टर्म मिला कि नहीं मिला स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes or no? After that I compare these two triangles. PT is equal to QT, अभी तो just मिला। Both the triangles are having 90 degree. Yes. Both the triangles are having common side. Yes. Both the triangles are congruent by SAS test. That's why CP is congruent to CQ. Sum खत्म। Got it everyone? और ये सम आएगा for 4 marks. For 4 marks. क्या easy है triangle? Perfect. और thank you so much students. I hope that आपको circle ज्यादा hard नहीं जाएगा, and we will enjoy this circle wala sessions very well. Thank you so much. God bless you. Don't go away. You are having a lecture right now. Stay tuned for the next lecture.